Why do athletes participate in the All India Inter-University Athletics Meet when no records are counted there? It doesn't affect rankings, and the Athletics Federation of India doesn't even recognize it. When NNI Sports covered the AIU meet in Bhubaneswar in December 2024, there were some negative aspects. For instance, the javelin runway was in poor condition. The long jump runway didn't even meet standards, and there was no NADA presence during the first 2 days. NNI Sports spoke to Tejashwin Shankar, the national record holder in high jump and Commonwealth Games medalist. He has a unique solution to offer, which is all three bodies, schools included, could come together under the AFI. सर ये मतलब बहुत ही लॉजिकल सवाल है और मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इन छोटी-छोटी मतलब क्या करें टेक्निकल रीजंस की वजह से अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है और वो कहीं पे रिकॉर्ड करता है तो उसको ये देख के करना पड़ेगा कि ये कौन से लेवल का कंपटीशन है या फिर किसका कंपटीशन है, वहाँ मैं रिकॉर्ड करूँ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता। मतलब स्पोर्ट्स में आपके पास पूरे लाइफ में शायद आपका एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपकी बॉडी बोलती है कि आज वो रिकॉर्ड वाला दिन है और उस दिन वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो बॉडी को थोड़ी पता है कि आज AFI का कंपटीशन है या फिर AIU का कंपटीशन है, किस चीज़ का है। उसको तो है कि टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट, आई वांट टू गो एंड अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, और आप अचीव करते हो और उस दिन वो हो जाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसे कोई अचीव करता है और उसके बाद उसे पता लगता है कि अरे आज तो यहाँ पे नाडा नहीं आया या फिर यहाँ पे कोई और नहीं आया, उसकी वजह से मेरा रिकॉर्ड रेक्टिफाई नहीं होगा। सो आई पर्सनली थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर AIU कैन कम टू सम टर्म्स विद AFI और उनको बोले कि आप हमारे कॉम्पिटिशन को एटलीस्ट बिड कर सकते हो कि लिस्ट हो वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के साइट में, ताकि यहाँ जो बच्चे कम्पीट कर रहे हैं उनको उससे मौका मिले। और AFI शायद उनसे बोल सकती है कि चलो हम बिड करेंगे बट प्रोवाइडेड यू मेक श्योर कि अगर आपके कंपटीशन में नाडा नहीं होगा तो वी विल प्रॉब्ली नॉट अलाउ। तो ऐसे कुछ अग्रीमेंट डेफिनेटली हो सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स अबाउट स्प्रेडिंग एथलेटिक्स एंड मेकिंग श्योर द स्पोर्ट इंक्रीजेस इन आवर कंट्री एंड मोर पीपल प्ले द स्पोर्ट। तो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो उतना अच्छा है आगे आने वाले एथलीट्स के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए। NNI Sports attended AFI's AGM, where the AIU was a major topic of discussion, focusing on significant irregularities in the AIU meet. We also spoke with AFI Senior Vice President Anju Bobby George about the issue. Actually, it's a big complaint from every corner that our youth is suffering from the school national championships, or if it's the college inter-colleges championships or in the national college championships. See, there's not even a single qualification mark for any event. Kids are coming like, see, 100-meter race is 80 plus races. How we can deal that? Yeah. And in long jump, there were 3 rounds, and each round they had more than 70 athletes. Yes, so after one round, how many hours we have to wait? So that is ruining athletes' career. They will end up in injury. So this is time to revamp everything, and there is no doctors, as you said. Yes. So it is not in a professional manner it's working. So Athletic Federation should take a strong decision, because this is sports, athletics. It is coming under Athletic Federation of India. Though they are different bodies, it should come under Athletic Federation of India. There is some confusion about how an athlete can qualify for the World University Games and whether the AIU meet is the only way for qualification. TJ clears the air. हमारे कंट्री में 2 गवर्निंग बॉडीज हैं, एक तो यूनिवर्सिटी गेम्स की और एक एथलेटिक्स की AFI, और यूनिवर्सिटी गेम्स की ऑब्वियसली AIU। तो AIU के अलग नेशनल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी नेशनल हो गया, और AFI के बाकी सारे अलग नेशनल्स होते हैं जो मतलब आपके इंटर स्टेट फेडरेशन कप, ये सारे कॉम्पिटिशन्स AFI के कैलेंडर के अंडर आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज ये होता है कि आपने टीम सिलेक्शन की बात की, तो सिंस AIU गवर्निंग बॉडी है, आपको AIU का एक कॉम्पिटिशन खेलना पड़ता है जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होता है सिलेक्शन पाने के लिए, बट वो दिसंबर में होता है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यूजुअली जून जुलाई में होते हैं। तो एक तो बहुत ही लंबा टाइम स्पैन होता है दिसंबर या जनवरी से लेके जून जुलाई तक का। तो बहुत सारे बच्चे जो शायद उस समय फिट हो जनवरी में, वो जून आते आते बिल्कुल ही अनफिट हो जाते हैं, बट क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नेशनल्स जीते हुए होते हैं तो फिर उनको लगता है कि भाई मेरा तो डायरेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, बट 6 महीने उस बात को बीत चुके होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए AIU ने पिछले 2-3 साल से, मुझे याद है लास्ट ईयर तो पक्का ये हुआ था कि इंटर स्टेट जब हुए थे उसी टाइम पे उन्होंने अपने ट्रायल्स भी कंडक्ट किए थे। तो एक तरीके से वो एक फिटनेस ट्रायल के जैसे, लेकिन वो शुरुआत फिटनेस ट्रायल के जैसे हुई थी, लेकिन बाद में सबको ही मौका मिल गया था एक और, कि आपने अगर यूनिवर्सिटी खेला हो ना खेला हो फिर भी आप आके वहाँ पे ट्रायल्स दे के, अगर आप ट्रायल्स में जीतते हैं और क्वालिफाई हिट करते हैं तो यू कैन क्वालिफाई योरसेल्फ फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो वो क्लैश कर रहे थे इंटर स्टेट के साथ जो कलिंगा में हुए थे 2023 में भुवनेश्वर में।
सो उसमें मतलब एक तरीके से सर्कस मच गया था, क्योंकि ऑब्वियसली 2 अलग-अलग गवर्निंग बॉडीज़ हैं। तो कुछ बच्चे जो इंटर स्टेट में एएफआई के इंटर स्टेट में कम्पीट कर रहे थे, वो उसके बाद एक दिन वहाँ पे हीट्स भागा उनने, और अगले दिन जाके वार्म अप ग्राउंड में दूसरी जगह हीट्स भाग रहे हैं यूनिवर्सिटी टीम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो मतलब एक बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, और मतलब उसको अवॉइड करने के लिए अगर इसका कोई सोल्यूशन निकले कि यार कोई एक गवर्निंग बॉडी हो और मतलब सारे कॉम्पिटिशन्स उसके अंडर आए, या फिर अगर आप इस नेशनल में कम्पीट करते हो उसके मार्क्स भी काउंट हो टुवर्ड्स समथिंग एल्स, तो वो मतलब ऐसे हो तो फिर काफ़ी बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। और काफ़ी हद तक ये हुआ भी था पिछली बार। बाद में आते-आते उन्हें रियलाइज़ किया था जो ट्रायल्स हो रहे थे कि वो टाइमिंग भी गलत थी, बट उनके लिए वो सबसे आसान था क्योंकि सारे लोग एक जगह कॉम्पिटिशन के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो एक और ट्रायल ही सही। तो थोड़ा-सा हौच-पौच हो गया था वो, लेकिन टीम उसके बाद भी गई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, और उस टीम में मैं भी था। So there are two athletics governing bodies in India. One is the AFI and the other is the AIU. Under AFI, which is the national governing body of Indian athletics, events such as the Interstate Athletics Championships, Federation Cup and IGPs are organized, while under AIU, university level games are conducted. That raises the question, should the AIU come under the AFI? फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट एथलेटिक्स, अगर किसी भी कंट्री में स्कूल एथलेटिक्स, स्कूल स्पोर्ट्स या फिर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्ट्रांग नहीं होगा, तो वहां से कभी भी आपके पास एक पाइपलाइन या फिर बेंच स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेट एथलीट्स नहीं पैदा हो सकते, चाहे आपका कितना भी अच्छा नेशनल कैलिबर हो, नेशनल कंपटीशन हो। तीनों अलग अलग बॉडीज का संगम एक जगह हो जाए और उससे मतलब सबको फायदा हो, चाहे वो स्कूल स्पोर्ट्स के बच्चे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे वैसे बच्चे हों जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते। सो दोज आर ऑल मोस्टली द किड्स दैट कम्पीट एट एएफआई कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि उनका फिर वो यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट यूनिट। सो ये सब का एक संगम सा हो जाए, और अगर मे बी इफ इट्स ईजियर फॉर एवरीबडी टू कम अंडर एएफआई, आई थिंक उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट गवर्निंग बॉडी इन इंडिया फॉर एथलेटिक्स।